start the exercise 2b, and the question number is from the advanced level, question number 6. So can we start now? The temperature of a village on a particular night is minus 11 degrees Celsius. The next morning, the temperature rises by 7 degrees Celsius. Find the temperature in the morning. So we have to find the temperature. Basically, we have to find the difference that at the particular night, the temperature of the village is about minus 11 degrees Celsius, is it? And the next morning, temperature rises up into the positive 7 degrees Celsius. So we have to find the temperature in the morning. It seems that we have to use the given form exactly as they provided. The minus 11 is with a minus and the 7 is with the plus. And we just have to generate the form. Then we have to solve it step by step. Okay? You have to open your notebook in which you have to write step by step. Okay, this is the thing I wanted to tell you, that if you have to solve the question like this, like the questions with the statement, then you have to give the points at least. Okay, at least 1 or 2 points, then you have to give the data, then you have to solve it. Okay, this is exercise 2b, and then question number is 6. Okay. So basically we have to find the temperature. So I will write the temperature at night is. I'm talking about these points, okay? Temperature at night. What is the temperature at night? That is minus 11 degree Celsius. And the temperature at morning? Can you tell me that? Very good. That is positive 7. Huh? Okay. And the question? What is the question? Find the temperature in the morning. The next morning the temperature rises up. Na? The next morning temperature rises up. So it seems that we have to write the different statement that is not written here. Temperature at next morning. You have to write the complete, okay, spelling of the morning, okay? Okay, ma'am. Now I have to calculate the temperature at morning. Okay. Then how I have to write it down? I will write it down same as like the situation is given, minus 11 plus 7. What will be the answer? 4. Plus or minus? Minus. Minus 4 degrees Celsius. And have you done with this page? Yes. Okay, then you have to write the answer like step by step. So the temperature in the morning is, the temperature in the morning is minus 4 degree Celsius. Got it? Ji, ma'am. Done with this question. Can I move to the next part? Yes. 7.
The figure shows a part of a thermometer. The readings are in degrees Celsius. Find the difference between the temperature indicated by the points A and B. A indicates the -7 and B indicates the -15, isn't it? What do you think? If you can look carefully on your textbook, you will find the reading of A. You can calculate backward. -10, -10 and then 9 and then 8 and then 7. I think that is the -7. Is it? Yeah. And then what is it between 20 and B? That is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. That is the 16. So B is 16. Now we have to write each and everything according to the step by step. This is question number 7. So I have to write on the point A. We have to go with the step by step. Point A is equal to, point A is -7 degree Celsius, and then point B is 16 degree Celsius. Got it? So we have to find, what we have to find, Isma? What we have to find in this question? The difference between the temperature. Very good. The difference between the point A and then point B. The difference between temperature. So how I have to write this? Can you explain? How I have supposed to write it? -7 plus 16. -7 and -16, na? -16, na? No. No? नहीं. फिर कैसे? Then plus 16 नहीं होगा. क्योंकि उन्होंने कहा डिफरेंस करें, तो डिफरेंस में क्या करना होता है? डिफरेंस में आपको माइनस लिखना होता है. आपको उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. हम लोगों ने पीछे डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए हैं ना. व्हेनेवर दे आस्क अबाउट द डिफरेंस, वी हैव टू डिफरेंशिएट देम. We have to differentiate them. We have to put the negative sign. Okay. Okay, So you don't think that we have to place the positive value first and then negative value? Because in the previous question we placed 11 first and then positive 7. But I think this arrangement is perfect. Or let's just take एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल. अगर वहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी ऐसा किया है कि अरेंजमेंट हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हमें स्पेसिफिकली रूल फॉलो करना पड़ेगा. ओके. यहाँ पे देखें, उन्होंने पहले एक जो ए की वैल्यू है वो -10 है. देखें यहाँ पे भी देखें, उन्होंने बी की वैल्यू पहले लिखी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू उन्होंने पहले लिखी है. ठीक है. इसमें जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, जो सेकंड वैल्यू होती है उसको हमेशा पहले लिखा जाता है. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनीथिंग, वी हैव टू प्लेस द सेकंड वैल्यू एट फर्स्ट एंड द फर्स्ट वैल्यू एट द सेकंड. ओके. Okay, ma'am. अब हम सबसे पहले रखेंगे 16 डिफरेंस के लिए माइनस, और ये -7 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और 16 + 7 हमें कितना देंगे? 23
डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? ठीक है मैम। So the difference between the temperature at point A and B is 23 degree Celsius. चलें जी. Now the next question. Question number 8. A city is located at a height of 138 meter above sea level while a town is at a height of 51 meter below sea level. Represent the altitude of the town using a negative number. Hence, find the difference in altitude between the city and the town. सबसे पहले तो आपको सिटी लोकेटेड एट अ हाइट में है, तो मुझे इसमें बताएं इसके साथ पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव लगेगा? पॉजिटिव। वेरी गुड, उसके साथ पॉजिटिव लगेगा. एंड देन द वाइल्ड अ टाउन इज एट अ हाइट 50 मीटर बिलो सी लेवल. नेगेटिव. रिप्रेजेंट द एल्टीट्यूड ऑफ द टाउन यूजिंग अ नेगेटिव नंबर. आप जो एल्टीट्यूड ऑफ टाउन का है ना, आपको उसको पहले नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. वो क्या है, कैसे लिखेंगे फिर? हाइट ऑफ टाउन नेगेटिव नंबर के साथ -51. तो उसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि बड़ी वैल्यू को हम लोग पहले रखेंगे कि 138, क्योंकि वो हमारी हाइट पे है, वो नीचे है ना, वो हाइट वाली ऊपर वाली वैल्यू है. ठीक है, सिटी ऊपर है, हाइट नीचे है. ओके, तो पहले जो हाइट वाली नीचे टाउन वाली है, फिर ऊपर हम लोग हाइट वाली बिल्डिंग की बात करेंगे. तो 138 को डिफरेंस निकालेंगे. ओके, यहाँ पे इसको देखें कि कैसे करेंगे. सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे. ठीक है, सो द टाउन इज लोकेटेड, सबसे पहले डाटा है हमारे पास, अ सिटी इज लोकेटेड एट हाइट, सिटी इज located at height. कितनी हाइट है इसकी? 138 मीटर अबव सी लेवल. ठीक है, ये हो गया अबव. हाइट में मैंने बता दिया. ठीक है, टाउन 51 मीटर बिलो सी. यस, ये हो जाएगा बिलो सी लेवल. दैट इज अबाउट -51 मीटर. ठीक है, अब वो नेगेटिव नंबर कैसे लिखेंगे? नेगेटिव नंबर भी बिलो लेवल के लिए वो हो जाता है -51 मीटर. ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंस. पॉजिटिव वाली वैल्यू और सेकंड वैल्यू पहले, जो कि 138 है. 138 डिफरेंस के लिए माइनस एंड देन -51. तो मुझे बता दें इसका आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, +189 मीटर्स. इसको नोट कर लिया? जी मैम. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -2 and 3. The figure below shows a timeline for BC and AD. For example, 2 BC stands for 2 years before Christ and 3 AD stands for 3 years anno domino, which means in the year of the Lord after Christ was born. What is the main difference between the timeline for BC and AD and the number line? सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है -2 एंड माइनस ने कहा कि यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -2 एंड +3. अब -2 एंड +3 का डिफरेंस क्या होता है? अगर आप फाइंड करें तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस?
डिफरेंस फाइंड करना है, वो आपके पिक्चर में बना भी हुआ है, -2 का और 3 का। तो -2, 3 को पहले लिखेंगे, 3 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। सबसे पहले फर्स्ट वाला 9 का फर्स्ट पार्ट डन करें, मुझे डन करके बताएं। डन मैम। ओके, कैन यू, ओके, आपने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ लैपटॉप से? टैबलेट। Okay. Can you just to turn the back camera on so you can see that? ओके मैम। ऐसी काम। ओके, ठीक है, अच्छा किया आपने, लेकिन इसको प्रॉपर मेंशन भी तो करेंगे ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 9, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड इसको आपको अगेन लिखना पड़ेगा, बहुत गंदा किया है, बिल्कुल भी नहीं। सो यू हैव टू फाइंड, आप लिखेंगे फाइंड, आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, D/F। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 and 3, -2 and 3, very good, -2 and 3। then आप इसको लिखोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे डिफरेंस। देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया ना, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स एज वेल। now here you get your answer, understood? जी मैम। इसको नोट सही तरीके से नोट करें, फिर 9 का सेकंड पार्ट करवाऊं। डन मैम। Okay, now look at the second picture. The figure below shows a timeline for BC and AD. So BC and AD timeline has no year 0. Okay, and it jumps from 1 BC directly to the 1 AD. 1 BC is just directly jumping to the next year, which is 1 AD. वो 5 BC से जंप लगाया, फिर 1 BC में आए, फिर 1 BC से 1 AD, देन वो 5 AD में चले गए। ठीक है, ज़ीरो नहीं आया बीच में। एंड द ईयर्स आर लेबल्ड डिफरेंटली विद BC ईयर्स काउंटिंग बैकवर्ड एंड द AD ईयर्स काउंटिंग फॉरवर्ड। BC का बैकवर्ड है और AD का फॉरवर्ड है। ठीक है, नंबर लाइन जो स्टैंडर्ड लाइन इंक्लूड करती है ना, उसमें ज़ीरो होता है एंड हैज़ अ कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस फॉर्म, नेगेटिव द पॉजिटिव नंबर विद नो स्किप बिटवीन -1 एंड n। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव डिजिट दिए गए हैं एंड ज़ीरो भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है, तो आपने फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2 BC, what is the main difference between the timeline for BC and AD and the number line। तो आपने हर एक ईयर को काउंट करना है। सबसे पहले आपने 2 BC को 1 BC तक जाना है, फिर 1 BC का 1 AD तक जाना है, फिर 1 AD से थ्रू 3 AD में जाना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 BC लिखा हुआ है, 1 BC पे सेकेंड BC से आपने जंप करना है 1 ADC में, फिर 1 BC में, फिर 1 AD में, फिर 1 AD से 3D में, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका है सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम 9 का। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 BC to 1 BC।
तो 2 से लेके 1 तक कितना ईयर पास हुए हैं, कितने ईयर्स लगे हैं इसको? 1 ईयर ना? वेरी गुड, 1 ईयर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 ईयर। अब आप देखें जब सेकेंड पार्ट है उसी को 1 BC से 1 AD में जाते में कितना टाइम लगा है? इसमें भी उसे 1 ईयर ही लगा है, 1 ईयर। ठीक है, अब मुझे बताएं फ्रॉम 1 AD से लेकर उसे 3 AD तक जाने में कितना टाइम लगा है? 2 ईयर्स। कितने लगे हैं? 2 ईयर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आर, सबको क्या कर देंगे? ऐड। तो ये कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। ठीक है, अब हमारे पास कितना गैप आ गया? 4 ईयर्स का। ठीक है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइम लाइन्स फॉर BC एंड AD एंड द नंबर लाइन। ओके, ओके मैम। and what is the main difference between the timeline for BC and AD and the number line? Wait, the question is about you have to tell the BC and AD timeline. The BC and AD timeline has no year 0. It is jumps from 1 BC directly to 1 AD and the years are labeled differently. And the number line and the standard number line includes 0 and has a continuous sequence from the... Okay, the right now I write the answer. The right is the how many years are there between 2 BC and 3 AD. The question I just right now I write it about the third part. That is the third part. 9th थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा ना कि ईयर का डिफरेंस बताएं। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2 BC एंड 3 AD। 2 BC से लेकर 3 AD तक कितना का डिफरेंस आया है। ठीक है, वो मैंने नीचे वाला क्वेश्चन पहले लिख दिया, क्योंकि हम लोग अगर देखें 2 BC से लेके 1 BC तक 1 ईयर था, फिर 1 BC से लेके 1 AD तक 1 ईयर था, फिर 1 AD से 3 AD तक आपने 2 ईयर्स लिख दिए। ये 9 का थर्ड पार्ट का आंसर है। ओके, और 9 के जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो मैं अभी आपको लिखवाती हूँ। आपने लिख लिया? ओके, अब 9 का जो सेकंड पार्ट है ना उसका सबसे पहले उन्होंने लिखा है टाइम लाइन के बारे में बताएं ना। BC, वी हैव टू टेल समथिंग, BC एंड AD टाइम लाइन। इसके बारे में आप लिख सकते हैं the BC and AD timeline has no year 0. Has no year 0. ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया इसका। हाँ, एक ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपने बताना है अबाउट द नंबर लाइन। नंबर लाइन में लिखेंगे स्टैंडर्ड लाइन इंक्लूड 0 एंड हैज़ अ कंटिन्यूस सीक्वेंस। सो ये नंबर लाइन के बारे में यही है ना कि नंबर लाइन का तो 0 से स्टार्ट होता है, उसका कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है +1 से लेके -1 तक, ऐसा ही है ना। अब आप लिखें अ स्टैंडर्ड नंबर लाइन इंक्लूड्स 0, इधर लिखिएगा अ स्टैंडर्ड नंबर लाइन Our standard number line includes 0, includes 0 and has a continuous sequence
from negative to positive number. Done? Done, ma'am. Okay, what do you think about in question number 4? Can you read the question number 4? 9/4 part. Think of another real life example that is similar to the timeline in part 2 but different from the number line in part 1. सो बेसिकली अब आपको एक ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में ढूंढना है जो सिमिलर हो टाइमलाइन के, जो सेकंड में बताई गई है, जिसका टाइमलाइन सेकंड से इक्वल हो बस उसकी नंबर लाइन फर्स्ट वाले से डिफरेंट हो. कौन सा आपको लगता है ऐसी एग्जाम्पल हो सकती है जिसमें हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं कि एक ईयर आता है, फिर कंप्लीट ईयर होता है, फिर सेकंड, और सेकंड थर्ड को छोड़ के हम 4 पे भी जंप कर सकते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं? स्कूल ईयर. School year is a good example. Why? Because the timeline for school year can be broken into different segments, such as terms और semesters. हम लोग स्कूल में एक ईयर को हम लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट टर्मिनल होंगे, फिर 3 मंथ्स का गैप आएगा, फिर फाइनल टर्म्स होंगे, फिर सेमेस्टर वाइज हम लोग कर देते हैं 6 मंथ्स को एक 1 ईयर का टाइमलाइन ब्रेक कर देते हैं. ओके, एंड सच एज फॉर एग्जाम्पल यू मे गो फ्रॉम द एंड ऑफ टर्म 1 एंड डायरेक्टली इनटू द स्टार्ट ऑफ टर्म सेकेंड. आपने अपने फर्स्ट टर्म 1 दिए, फिर आपने वो स्टार्ट किया, अभी उसका एंड हुआ है, फिर आप अपने टर्म 2 पे एंटर हो जाते हैं ना. जब आप टर्म 1 देते हैं तो आप अपने टर्म 2 में एंटर हो जाते हैं. ठीक है, विदाउट अ ज़ीरो पीरियड. इसमें ज़ीरो पीरियड नहीं आता. लाइक आपने 1 से लेके 6 मंथ्स तक आपने कंप्लीट दिया फर्स्ट टर्म. ओके, अब आप अपने सेकेंड टर्म में चले गए हो. देयर इज़ अ नो बिटवीन 6. इसमें कहने का ये मकसद है, इसमें एक ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ होती है जिसमें सिर्फ काउंटिंग है, और काउंटिंग भी पॉजिटिव वाली है सारी, ना ही ज़ीरो है और ना ही नेगेटिव वाली काउंटिंग है. समझ आई बात की? जी मैम. दिस इज अ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, इसको इरेज करके सही से. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये मैं स्कूल की टाइमलाइन बना रही हूँ. ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10. मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके टर्म 1 थे. ओके, अब आपका टर्म 1 जैसे ख़त्म हुआ है, अब आप टर्म 2 में एंटर हो गए हो. वो आपके हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका टर्म 2 हो गया. स्कूल ईयर की बात कर रही हूँ. डू यू फेस एनी ज़ीरो हेयर? कहीं ज़ीरो आया है यहाँ पे? 10 पे. वो तो 10 पे है ना. लाइक सिंगल ज़ीरो जो एक नंबर लाइन में दरमियान में यहाँ ज़ीरो होता है, वो आया? नहीं. कहीं पे भी नेगेटिव नंबर आया? नहीं. तो आप इसमें लिखें, मैं बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाएं. द बेस्ट एग्जाम्पल, स्कूल ईयर इज अ गुड एग्जाम्पल. Good example. The timeline for a school year can be broken Can be broken into different segments. into different segments. अब आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने ड्रॉ किया ना, ये ड्रॉ करना पड़ेगा. ड्रॉ करके मुझे बताइएगा.
Done, ma'am. फिर इसके बाद आप लिखें फॉर एग्जाम्पल यू मे गो फ्रॉम For example, you may go from and term 1 term 1 directly into the start of term 2. Done, ma'am. Without a zero period in between. Done? Ji. Do you have any question in this exercise, Isma? No, ma'am. Any query, any difficulty you face while solving these integers? नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन 9 बहुत कंफ्यूजिंग था. क्वेश्चन ये लाइन वाला ना जी. इसमें सबसे पहले सिंपल इतना सा था कि जब भी हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हमने नंबर लाइन में क्या पढ़ा है क्या सीखा है कि नंबर लाइन तो ऐसे ड्रॉ होती है जिसमें ज़ीरो आता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आते हैं तो इसका मतलब इसके अलावा भी कोई ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ होती है जिसमें हम लोग डायरेक्टली नंबर टू नंबर जंप करते हैं वहाँ पे ज़ीरो नहीं होता वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो ऐसी नंबर लाइन को टाइम लाइन नंबर लाइन कहते हैं ठीक है तो उसकी एग्जांपल्स बेशुमार मिल जाती हैं हमें जिसमें कहीं पे भी सिंगल ज़ीरो नहीं आता ज़ीरो ओके ओके मैम. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर जी. एंड देन सो फार सो गुड जी.